हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और एज प्रॉमिस्ड आई एम ट्राइंग टू कीप द एपिसोड्स इन अ फ्लो। और कल भी संडे था, कल मैं आया था इस नियत से कि ये इस पे फ़ोन लगा के मैं यहीं से कर लूँ, बट मैं आया, मेरा डोरेमोन गिर गया। माई एनर्जी लेवल्स वेंट सुपर लो फॉर सम रीज़न एंड देन आई कुडंट शूट इट। बट मैंने आज कैमरामैन को ख़ास कहा था कि आज के एजेंडा में आस्क गंजी स्वैग बिल्कुल ज़रूर बनेगी। हालांकि जो पिछली रिकॉर्ड की थी वो अभी अपलोड हो रही है, बट नॉट गोना स्टॉप। ऑलराइट, चलें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/Kanji Swag बिकॉज अ लॉट ऑफ मैन आवर्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस दिस शो एंड यू नो इस शो पे कोई ब्रांडिंग श्रांडिंग कुछ नहीं होता, सो इट हेल्प्स अस अ लॉट। थैंक यू। सो पहली ईमेल पे चलते हैं। द फर्स्ट वन सेज लीविंग द अब्यूजर विल कॉस्ट मी माई सन। हाई होप यूर डूइंग वेल। एक खातून की तरफ से, hope you're doing well. I've seen your show quite a few times and thought to get an opinion on the situation. I am a 33-year-old female. I got married in 2014 and yes, it was the worst nightmare of my life. It was an arranged marriage and the person I got married to is a US citizen and he and his family moved there when he was 13. He came to Pakistan for marriage and I got married to him. He's a self-made millionaire and he has properties in Pakistan, Dubai and USA. His father is pretty wealthy as well. Anyways, within weeks of marriage, I got to know that he's a heavy drinker. He works hard and when he's not working, he's drinking. I have seen him in drunk mode for more than 24 hours. He just wouldn't stop and keep on drinking. Within months of my marriage, he started abusing my parents while drunk. That they didn't give any dowry. यार ये मल्टी मिलियनेयर आदमी जहेज़ मांग रहे। अच्छा, अगर अमेरिका में है जहेज़ मांग रहे तो यहाँ से क्या ट्रक जाता फर्नीचर का अमेरिका? हाउ डज़ दैट वर्क आउट? कैश चलता है जिन लोगों ने दी है अमेरिका या बाहर मुल्कों में डाउरी? दुबई तक तो समझ आता है, यहाँ से शिप में चला जाता सामान, वो तो मैंने सुना भी है लोगों से। बट हाउ डज़ दैट वर्क अगर यहाँ से लड़की इंग्लैंड जा रही है और वो जहेज़ मांग रही ज्वेलरी की सूरत में? आई डोंट नो मैन। Anyway, didn't give any dowry, and your father is cheap and even messaged my father while being drunk that you are such a cheap person. We were shocked because disrespecting elderly like that was something new to my family. And I don't come from a middle class background. We live in DHA Lahore. My father is a well established businessman. I have done MBA from top private university of Lahore, but unfortunately never became financially independent because father provided everything and my wedding was quite lavish. Anyways, the abuse continued whenever he was drunk and he would abuse me and put loud music in the room and not let me sleep. It was severe torture, but my father said nothing in return. Well, I have two younger sisters as well and he said it's embarrassing, etc. मुझे समझ नहीं आया point. My husband moved to UK with family for business and he applied my visa for whole 9 months. While my visa was to be approved, he visited Pakistan hardly for a couple of weeks. Well, while using his laptop on day, I saw the worst. He sleeps with escorts around the world. Okay, वो लैपटॉप यूज़ करते हुए सो गए तो that's when she found her. He sleeps with escorts around the world and he's addicted to fucking asses. Okay, hysterics है तो that's what I can gather. I mean, he loves anal, I guess. When I moved to UK with him, I would find condom boxes, pages lying around with names of escorts and numbers, like he was not even trying hard to hide it. Almost every night he would come home drunk and from some escort. I don't understand what was happening, why he's not sleeping with me. Hardly once a month. Anyways, I got pregnant after 3 years and I thought maybe he will change the drinking habit and not put loud music at night in the room with the baby sleeping, but no. He would, and while I was taking care of the baby, he would be spending 1 hour of his night time with escorts because he has addiction, which I have realized after 8 years of marriage. 8 years is a lot of time. I think the first few months are enough, or whenever you found out. Anyway, initially I stayed in the marriage. Number one, no support from my family, and number two, I thought Allah is punishing me for my sins. Okay, that's ये चीज़ें जो है ना हमारे जहनों में डाली गई हैं बचपन से। देखें, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का यही है ना कि वो गरीब को बोलो, गरीब को ये सिखा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है कि जी ये जो अमीर लोग हैं ना, ये तो नींद की गोलियाँ लिए बगैर सो ही नहीं सकते, इनकी ज़िंदगी में तो कोई सुकून नहीं होता। अबे बहुत सुकून होता है, उनके जो गद्दे होते हैं ना उसमें ऐसी नींद आती है, तुम्हारी सोच है।
वो सही कहता है ना, शायद अनवर गरीब हो सही तो कहता है। फर्स्ट क्लास फ्लाइट, कभी आप बैठे हो बिजनेस क्लास में? मेरा तीन बार मेरा मौका लगा। एक बार तो उन्होंने खुद ही अपग्रेड कर दिया था, मैं तो बड़ा खुश हो गया, और 2 बार मैं ख़रीद के बैठा। मज़ा ही अलग आता है। इकोनॉमी में टांगे ही नहीं आ रही, यूँ बैठे हुए अकड़ के, अबे बहुत मज़े हैं। एक तो ये सिखाया हुआ है कि गरीब अपनी गुर्बत पे वो फ़ख्र, अच्छा ये भी सिखाया हुआ है कि जी अमीरों का हिसाब बहुत होगा, क्योंकि पैसे ज़्यादा होते हैं ना, तो उनका हिसाब भी ज़्यादा होगा, ताकि गरीब खुश रहे कि चल सही है, मेरे पास है ही 5,000, मेरा क्या ही अल्लाह हिसाब ले लेगा। ताकि गरीब रिवोल्ट ना करे, यार ये अमीर जिसकी फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ रहा और ये कहाँ से कहाँ चला गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में मसला है। एक तो ये सिखाती है, और औरतों को ये सिखा दी कि भाई जो तेरा नसीब, ये नसीब वसीब ये सब फजूल की चीज़ें हैं, इंसान खुद बनाता है। इंसान के एक्शंस लीड टू, ये तो फिर वही बात हो गई, अगर अल्लाह ने लिखा ही यही था तो फिर हिसाब किस बात का? अगर अल्लाह ने पूरा हमारा लिख दिया है, स्क्रिप्ट पूरा मेंशन्ड है कि जी किसी ने शराब पीनी है, किसी ने एस्कॉर्ट के पास जाना है, तो हिसाब किस बात का होगा? ओ भाई, GTA का गेम है बेसिकली ज़िंदगी। आपने निकल के खुद डिसाइड करना है, मैं सीधी गली जाऊंगा तो पुलिस वाले आएंगे, उधर से जाऊंगा तो उधर से गैंग मेंबर्स आएंगे। तो ये वट एवर डिसीजंस यू मेक, वो रियलिटीज़ अनफोल्ड होंगी। फ्री विल तो इंसान के हाथ में। तो औरतों को ये पेट्रियार्कल सोसाइटी ने ये सिखा दिया कि भाई ये अब तुम्हारी किस्मत में यही था, अब इस हो, ताकि मर्द हरामी जो करना चाहे वो करे और औरत किस्मत को कोसती रहे कि भाई शायद मेरी किस्मत में लिखा था। ये सबसे फजूल कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारे, अब ये देखें ना, देखने में अगेन जैसे मैंने पिछली ईमेल में कहा था, देखने में तो ओ भाई वाह लड़की जी UK चली गई, अमेरिका चली गई, इतनी प्रॉपर्टियाँ होना दी, ओए होए होए होए, पता ही नहीं अंदर हाल क्या है। तो ये बहुत गलत है। नो बडी इज पनिशिंग यू फॉर योर सिंस, ऐसी कोई सीन नहीं है। बट नाउ आई हैव गॉट टू द पॉइंट वेयर आई हैव फॉरगॉटन माई सेल्फ फॉर वन रिलेशन. I was with someone I had before marriage and I never slept with him. But yes, the chats with him were bad and I thought I deserved this because I did harm too. तो ये समझ रही है कि because she was sexting with someone before marriage, तो ये उसकी सज़ा है। इतनी बड़ी सज़ा नहीं होती। अगेन ये अपने जहन से निकालने के आपकी किसी चीज़ की सज़ा मिल रही है, ऐसा कोई सीन नहीं है। My child is 5 now. He is treated like a prince by the in-laws since their son's first child, and yes, अच्छा उनका पहला पोता. They don't say anything to their son because money is king. My husband gives me monthly pocket money, which is around £500. I am on dependent visa and hopefully will get citizenship in 2 years, which is when I am planning to take a stand for myself because I have realized no one is going to help me. The problem now is for the last 2 years he has forced to do anal sex with him. He has forced me to do anal sex with him because that's what he only wants. Now he has stopped going to escorts when I am around, but when he is traveling he still goes to them because addiction, and honestly I don't want to do it. And you shouldn't, it's haram in Islam. आपका निकाह टूट जाएगा. And he's not a great father, like taking his son to park etc. According to him, he cannot hang out with family because of the background he belongs to. It is looked down upon. कि भाई बच्चे के साथ टाइम गुजार रहा है तो एमी कैसा मर्द है, बीवी को लेके जा रहा है, ओहो बीवी के कंधे पे हाथ डाल दिया, रन मुरीद है साला। क्या ये सोसाइटी है जिस पे हम फ़ख्र करते ना, हमारी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट की तरह नहीं है। अच्छा है वेस्ट की, मतलब ये तो सज़ा है कि वेस्ट की तरह नहीं है। एनीवे खैर, इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। अच्छा, हिज यंगर ब्रदर ऑन द अदर हैंड इज़ एन अमेजिंग हस्बैंड, सो आई डोंट नो व्हाट टू से। हिज फादर ऑल्सो ड्रिंक्स एंड दे गो टू रात की महफिलें वेयर ऑल द रिच अंकल्स आर इन देयर 60s and 70s with wives at home and young prostitutes at party. So according to my husband, this is normal because all his uncles are doing it and that's his social circle, not people of his age. I am seriously tired of this pathetic life and want to get out as soon as I get citizenship because I honestly don't want to have any form of physical relation with this person. But can I even co-parent with this abuser when he snatches my son? I want to start a new life, do masters again and do my job. My father has finally said you are an adult, do what you want, and promised me a plot in DHA as my inheritance. Because honestly, one main reason I'm stuck in this marriage is because financial dependence. But losing my son will be heartbreaking for me because he's with me 24/7 and this person either works, drinks or sleeps in his room. And yes, we sleep in separate bedrooms now because of his heavily drunk behavior. I made a small storage room
into a room for myself and my son, and he's filthy rich, but it's not like I'm buying luxury brands. He gives me enough to keep me sustained, and he will never give me more. He wants to maintain a family life in front of society, because how many fights we had. Even when I called the police, he didn't divorce me. He wants to maintain a family life, but he's an addict, and I know once I leave him, he will easily remarry, and I know the kind of wife he wants. One who cooks, cleans, take cares of his house, and while he goes around the world partying. I hope you answer you answer my email and give an opinion. Sorry to hear your situation. अमूमन मैं जो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो शादी में चले गए हैं, मैं उन सबको ये मशवरा देता हूँ कि भाई अगर आपने शुरू में ही इस तरह के साइंस देख लिए ना, तो बच्चा ना किया करें. उसके बाद फिर ये होता है. अब देखें, दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ अब्यूज़, मगर अब आप बच्चे की वजह से ज़ाहिर है इस सिचुएशन में ब्लैकमेल्ड हैं. तो इसीलिए भाई बच्चा करने से पहले 10 चीज़ें सोचनी चाहिए. अक्सर वो एक टिकटॉक मेरी नज़रों से गुजरती है, जिसमें सॉरी एक ट्वीट है, कल भी मेरी नज़रों से गुजरी, कि भाई आपने शादी से पहले जो है ना ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि भाई आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं. अच्छा, अब इसको लोग बोलेंगे ओ भाई शादी नहीं हुई, फ़ोन पे बात कर लें, भाई तेरे को क्या पसंद है, मेरे को क्या पसंद है. लेकिन सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस जो है ना भाई किसी ना किसी तरह आपको पूछनी चाहिए, क्योंकि होता ये है, मर्द पल रहे हैं आजकल पोर्न पे, ठीक है ना. तो वो उनका पर्सपेक्टिव कुछ और होता है, और मिलता उनको ऐसा है कि मतलब वो कहते हैं तो मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी देखा कुछ और है. वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कहते हैं यहाँ भी ऐसा ही हो. ऐसा हो नहीं सकता. और ओरिएंटेशन, और ये जिस तरह आपने बोला कि ही लाइक्स टू ही ट्राइज टू एक्सेस द बैक डोर, ये भी सब ये प्रेफरेंसेस ऐसे ही डेवलप होती हैं. एनीवे, तो ऐसी सिचुएशंस जो दूसरे लोग सुन रहे हैं, मैं ये सबको मशवरा दूंगा, खुदा के लिए बच्चा ना किया करें, एंड मेक श्योर यू यूज़ प्रोटेक्शन, या फिर ये कि कहीं एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी भी ना हो जाए, जब आपको क्लियर पता है कि यार यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं. ये चीज़ें जहन से निकाल दें कि अल्लाह ताला, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला नहीं करता, बट ये कि बहुत कम चांसेस होते हैं जो ऐसा अपनी फैमिली के सामने है, जिसको यही नहीं, बाप भी शराब पी रहा है, पार्टियों में जा रहे हैं, तो अल्लाह क्या ही, ये फिल्मों में होता है कि जी वो एकदम ज़ालिम आदमी के दिल में रहम आ गया, उधर से मोम वो दिया आया, दिया जल गया, और पता नहीं क्या. इंडियन फिल्मों में होता था पुरानी. लोग अपनी आदतें नहीं बदलते किसी के लिए भी. बच्चे डू इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ चेंज, एंड आई एम नॉट डिनाइंग इट. इट हैपन्स एसेंशियली इन माई केस, जिसकी एग्जाम्पल है, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी बिकॉज ऑफ माई सन, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव हिम मोर ईयर्स ऑफ माई लाइफ. ही डिज़र्व्स इट. वैसे ही मैं उससे दूर रहता हूँ, तो मैं सिगरेट पी के उसका वो टाइम भी और छीन लूँ उससे. मासूम बच्चा है, तो मैं ये चेंज मेरे अंदर आया. बट ज़रूरी नहीं कि हर किसी के अंदर आए, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है. अब आपने जब शुरू में आदतें देख ली थी, अगेन नॉट विक्टिम ब्लेमिंग, अब जो हो गया सो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. लेकिन ये शराब पी के गालियाँ देना फ़ोन पे, और इतना पैसा रख के और इतना बिजनेस हो के भी ये जहेज़ नहीं लाया, आप जहेज़ नहीं लाई, वगैरह वगैरह. और फिर वही पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, पेरेंट्स वैसे इतना सुनते नहीं हैं ये वाला शो, लेकिन भाई खुदा के लिए ये ना देखें जी यूके पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है और ये मिल गया. अच्छा, अब आपने बोला कि जी मेरे पास एक सिचुएशन ये है, क्योंकि घर से कोई इतनी वो नहीं है, और ये जो आपने बोला ना इनहेरिटेंस, वाले साहब ने बोला प्लॉट देंगे, अल्लाह खैर करे आपके भाई अच्छे हों अगर हैं तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि बहन के घर पानी नहीं पीना, बहन का प्लॉट खाना है. ये सबसे पहले करते हैं हम, क्योंकि वो ये देखेंगे भाई तू तो इंग्लैंड बैठी है, तेरा मियाँ इतना कमाता है, तो तुझे क्या कमी है, बस ये हम ले रहे हैं. मैं आपके दिल में कोई डाल नहीं रहा शक व शुबात, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा ही है भाई, ऐसा ही होता है. क्योंकि वो औरत जो है ना असल में हमारे यहाँ से ट्रीट होती है कि यार वो कोई फोड़ा नहीं निकल आया बॉडी में, क्या ये जल्दी से जाए, ये पस जो है मेरी बॉडी से निकल रहा है, जान छोड़ा इससे, जान. माएँ भी ऐसे करती हैं, मतलब सेम जेंडर की होके औरत से जान छुड़ाते हैं. पता नहीं क्या हम मसला है हमारी बेटियों से. दौरे जहालत वैसे बड़ा कहते हैं, बेटियों को दफनाते हैं, ये ज़िंदा दफनाना है बेटियों को. तो ये लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, और उल्टा के बेटी अब तुम्हारी किस्मत है, और ये है और वो है. तो ये जो आपने बात की पासपोर्ट वाली, अब इस पे लोग मुझे कॉल आउट करेंगे जी कि पिछले वाले ने पिछली एपिसोड में जो वो यूएस गया उसको आप कह रहे थे कि जी वापस आ जाओ, इसको आप दूसरा मशवरा दे रहे हो. देखो उस केस में सीन ये था, वो जो साहब थे जिन्होंने पहले अमेरिका चले गए और बाद में बीवी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, मोटी लग रही है, मतलब तस्वीरों में उनको अंदाज़ा नहीं हो पाया, तो वो तो क्लियर केस ऑफ ये था कि मतलब वो मिसयूज़ था.
फॉर द स्टेटस। यहाँ पे सीन दूसरा, इसलिए अगेन मैं ये नहीं कह जी औरत है तो औरत की साइड ले रहा हूँ तो फेमिनिस्ट पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। औरतों को वैसे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसीलिए मैं इतना शोर करता हूँ, ऐसी सिचुएशंस में ना फंसे। बाप ने बड़ी शादी करा दी, काम कभी नहीं करने दिया, वो तो तोनू की ज़रूरत है असी का मान देने ना, नहीं जी। इसी वजह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी है कि कल को कोई चूहा निकल आया अगला तो जो है जान छुड़ाना आसान हो, ठीक है। अब 500 पाउंड में क्या ही गुजर बसर होता होगा इंग्लैंड जैसे मुल्क में। यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, यू हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन। पाकिस्तान आएंगी, पाकिस्तान में ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद है औरतों के लिए, ऊपर से आप तलाक भी लेकर आएंगी तो वो और बर्बाद है। तो दैट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन। रहें आप उधर ही, पासपोर्ट पकड़ें, फिर अगले ने आपको अगर इस तरह मिसयूज़ किया तो फिर आप भी थोड़ा मिसयूज़ करें उसको फॉर द बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड। क्योंकि वैसे तो इन केसेस ऑफ कस्टडी आपके पास जब ये सारे प्रूफ हैं, ये प्रूफ भी जमा करके रखें, खुदा ना खास्ता कल को यूज़ करने ही पड़ जाएंगे। पुलिस को आप दिखा सकती हैं, सोशल सर्विसेज को दिखा सकती हैं कि भाई ये इसकी आदतें हैं, ये मुझे इस तरह फोर्स करता है, ये जो है इन एस्कॉर्ट्स के नंबर है जहाँ ये जाता है, ऐसे आदमी के साथ में औलाद कैसे आप छोड़ सकते हैं। और इस मामले में जो है ना वहाँ वो बच्चों का बहुत सोचते हैं भाई, बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है। बच्चा पैदा होता है और दूध के पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो मैंने खुद देखा है भाई, बड़ा ख्याल करते हैं उन माशरों में, क्योंकि उनको नहीं पता कौन सा बच्चा इलॉन मस्क है, कौन सा ज़करबर्ग है, वो आगे उनको बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के देगा। दे रियली इन्वेस्ट एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो इस सिचुएशन में इट्स अ क्लियर कट केस। अगेन मैं कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा भाई, मैं पहले बार डिस्क्लेमर भी देता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एज अ थर्ड पर्सन मैं ये सिचुएशन देख के बता रहा हूँ, गिवन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना कस्टडी का कोई इतना इशू होता नहीं। और पाकिस्तान तो है नहीं कि जज को पैसा खिलाया और बच्चा खींच लिया, ऐसा सीन नहीं है। विजिटेशन राइट्स मिल सकते हैं उनको, ही इज़ अ फादर एट द एंड ऑफ द डे, जैसा भी है वो फिर बाद में वो जो भी कोर्ट डिसाइड करे, आपको ये इशू नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान आ गई तो ये भी बोलेंगे डिवोर्स भी ले ली, बच्चा भी छोड़ा ही, कैसी जालिम माँ है वगैरह वगैरह, 10 चीज़ें होंगी। उधर ही करें, अपने आप को सिक्योर करें लीगली एंड देन गो फॉर इट। इस तरह ज़िंदगी तो आप रोज़ की मौत है। और आपके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, मतलब इस किस्म का माहौल जिस घर में होगा वो बच्चा क्या ही यूज़फुल सिटीज़न बनेगा। तो कोशिश एंड तक यही होनी चाहिए कि किसी तरह सिचुएशन सॉर्ट हो जाए। लेकिन जो आपने सिचुएशन बताई है, आई डोंट सी एनी होप। और ये बहुत गंदी आदतें हैं, मतलब एक होता है अल्कोहल पीना, एक होता है लाइफस्टाइल बना लेना। लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए चीज़ें। कुछ लोग हैं फंक्शनिंग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, रोज़ चरस पीते हैं मगर काम पूरा करते हैं, तो वो लाइफस्टाइल ना बने आपका। आपने हाँ ओकेजनल अगर कर लिया, अगर अब बोलेंगे जी आप प्रोमोट कर रहे हो उसको, भाई मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, जिसने जो करना है वो वैसे ही करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि बंदा रिस्पॉन्सिबली जो काम कर रहा है रिस्पॉन्सिबली करे, उसको वो रीज़न ना बने आपके अब्यूज़ का, उसकी वजह से आपकी फैमिली डिसइंटीग्रेट ना हो। तो ये मेरा कहना है बस। तो ये जो अपनी चीज़ को लाइफस्टाइल बनाना, और जी मेरे बाप और मेरे अंकल भी जो है पार्टी में नचाते हैं लड़कियां और उनका काम ही यही है, तो ऐसे माहौल में बच्चा क्या ही पलेगा पड़ेगा। तो कोशिश ये करें, क्योंकि अब आपने ज़िंदगी अपनी भी गुजारनी। कुछ लोग कहते हैं जी आपकी तो हो गई गुजर गई, एम ही हो गई, 33 की हैं अभी आप, अभी तो 1/3 हुई आपकी लाइफ, अभी तो आपने 100 तक सेंचुरी मारनी है, तो अभी तो कुछ भी नहीं हो, अभी तो शुरू हुई है आपकी लाइफ। तो आपने अपने लिए भी जीना है, अपनी औलाद के लिए भी जीना है, तो उसको अच्छा माहौल और अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट देना आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस गन से निकालना आपकी ज़िम्मेदारी है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू। और या यू कांट लिव in a miserable situation like you are right now. All right, ji, next email says, Pakistani youth, is it an illusion? Hi. So there has been a huge debate group going on about Pakistan being the youngest nation with almost 60% of its population under 24, and how we have such a bright future. However, witnessing the condition of our country lately, I am unable to buy into this claim. Assalamu alaikum. My name is ABC and I am a 19-year-old girl from a lower middle class Pakistani family. I am writing this email with a very heavy heart and a very confused mind. Unfortunately, the current political and economic mess in our country is getting worse every day. These so-called politicians and lawmakers are busy pointing fingers at each other, unaware of the destruction they are taking our country towards. They are frustrating the youth. Let me give you some facts. I interact with tens of students of my age daily, and the one thing that I have been listening constantly since the past 6 months especially is that how determined these people are to leave the country.
People are taking loans, selling their houses, begging their relatives, basically doing their best to go anywhere out of their homeland. Unfortunately or fortunately, I'm one of those people too. I'm feeling guilty writing this. No, you shouldn't. I'm a very staunch believer of finding solution instead of complaining, and that we together can bring a change in this country, blah blah. However, I'm really running out of arguments at this point. यार लिटरली 2022 चल रहा है एंड वी आर स्टिल फाइटिंग ओवर पॉलिटिक्स, जबकि हमारे लोग बारिशों की वजह से मर रहे हैं. आई मीन सीरियसली, लोगों की मौत पर सियासत करने वाले ये लोग किस मुंह से अभी तक वोट मांगते हैं. आई एम लिटरली शिवरिंग विद एंगर इवन थिंकिंग अबाउट दिस. बिजली, गैस, पानी, खाना, घर, गाड़ी कुछ नहीं है लोगों के पास. पीपल आर लेजिट फोर्स टू कमिट सुसाइड. आर्मी का बजट बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन का कम होता जा रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट पर खड़ा हुआ है, मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स आर वॉकिंग अनएम्प्लॉयड. दिस लिस्ट कैन गो ऑन फॉर एवर और मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या करें? सब छोड़कर सेल्फिश बनकर चले जाएं यहाँ से, सिर्फ अपना सोचें? शुड वी लेट द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? अगले 75 साल भी यही चलता रहेगा? मुझे पता है कि शायद यहाँ रुकने से भी कुछ ना हो, लेकिन ज़मीर को कैसे सुलाएं? हाउ कैन आई स्लीप पीसफुली एट नाइट नोइंग द फैक्ट दैट आई डिडंट प्ले एनी पार्ट टू मेक द सिचुएशन बेटर? कल तक मुझे 100% लगता था कि अब यूथ पावर में आएगी, इट्स द टाइम फॉर रेवोल्यूशन, चीज़ें बदलेंगी, हम बदलेंगे, बट रियली नाउ आई एम जस्ट क्लूलेस. करंटली आई एम ऑन अ गैप ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग माई A-levels एंड येस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, बट आई नो मैं वापस आ जाऊँगी. I can't just blame others while doing nothing myself. But yes, for the most people my age are very clear, they will never return. सारी क्रीम निकल जाने के बाद we will be left with बाल कलर करवाकर टिकटॉक पे नाचने वाली यूथ. बदलना फिर इस मुल्क को, करवा लेंगे तरक्की. रियली सॉरी इतनी लंबी ईमेल करने के लिए, बट आई डोंट नो किसको समझाऊं या सुनाऊं, कॉज नो वंस अंडरस्टैंडिंग. कोई कहता है मसला है तो चली जाओ, बहुत मोहब्बत है मुल्क से तो मत जाओ. नो वंस गेटिंग माई पॉइंट, इट्स नॉट दैट ईजी. आई डोंट नो, आई रियली डोंट. थैंक यू सो मच. आपने ये ईमेल रखी, मैं आपका नाम लेते लेते रह गया. यूर 19 एंड थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. आपने बोला कि आपके सारे दोस्त आसपास जो हैं वो बाहर निकलने का सोच रहे हैं. मैं आपको आज की तारीख का फैक्ट बताता हूँ. हाफ ऑफ द यूट्यूबर्स विल लीव दिस कंट्री विद इन द नेक्स्ट 6 months. आई एम टेलिंग यू दिस. उसकी वजह ये है कि it's becoming very difficult to make money here. उसकी मिसाल मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, आई एम अपलोडिंग थ्राइस एज मेनी वीडियोज़ नाउ. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं रोज़, तो मैं रोज़ाना 3 से 4 वीडियोज़ के स्वाइप अप लिंक लगा रहा होता हूँ. हालांकि अप अंटिल लाइक 3 months अगो ऐसी सिचुएशन नहीं थी, एक वीडियो आती थी किसी एक चैनल पे, राइट. आई एम वर्किंग थ्राइस एज मच एंड मेकिंग लेसर मनी एज आई डिड लाइक लास्ट ईयर. तो और दूसरा सिचुएशन ये है कि वी रिलाई हेविली ऑन ब्रांड एंडोर्समेंट्स. एक्सक्यूज़ मी. लोग जो समझते हैं ना कि जी यूट्यूब और फेसबुक से बड़े लाखों डॉलर आ रहे हैं, अगर आ रहे होते तो पता ही है सबको, इतना नहीं है रिटर्न व्यूअरशिप का. उसकी वजह ये है कि एड रेवेन्यू हर मुल्क का अलग होता है, और ये आई थिंक साइंस मैंने बहुत बार समझाई भी है. जैसे आप पाकिस्तान से वीडियो देखते हैं तो रूह अफ़ज़ा का ऐड चलता है, न्यूजीलैंड से बैठ के देखते हैं तो हाइनेकन का चलता है. हर मुल्क के एड रेवेन्यूज़, चूँकि एडवर्टिजमेंट की कॉस्ट डिफरेंट है, हाई या लो है, उसी हिसाब से फिर रेवेन्यू भी हाई या लो होता है. एनीवे, बट फाइनेंसिस तो एक बात है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान टेक रिव्यूअर है जो मोबाइल फ़ोन रिव्यू करता है, अगले 4 महीने कोई नया फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहा है इस मुल्क में. हालांकि दुनिया में कितने हो रहे हैं. सैमसंग का Z Fold हो गया, फ्लिप फ़ोन हो गया, एप्पल का iPhone हो गया. इंडिया में तो बनने जा रहा है आईफोन, यहाँ एप्पल है ही नहीं, बेचते भी नहीं है वो, यहाँ वहाँ बनाने जा रहे हैं. फिर कहते हैं जी क्या मुकाबला. आज भी मैं एक खातून का देख रहा था, वो इंडिया के टॉयलेट गिनवा रही थी, इतने लोगों के पास टॉयलेट नहीं है. अबे नहीं है, यहाँ भी कहाँ है टॉयलेट. मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊं कि कौन सी दीवारों पे वर्ल्ड मैप नहीं बना के जाते लोग. ऐसा ही है. तो ये फजूल की बात है जी, टॉयलेट नहीं है. हाँ ठीक है, टॉयलेट नहीं है, लेकिन यार बहुत बड़ा क्लाउड डेटा तो है ना. मतलब बेंगलोर में पूरा अमेज़ॉन का, वॉलमार्ट का सब चल तो रहा है ना. आई मीन जो है उस पर बात करो ना. ये नहीं है. टॉयलेट जैसे होना कोई बहुत शान की बात है तो बना लें टॉयलेट. एनीवे यार, कहाँ की बात कहाँ चली गई. सो मैं ये कह रहा था कि अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आर कंसिडरिंग. हाँ, तो फ़ोन यहाँ रिलीज़ नहीं हो रहे, तो एक टेक रिव्यूअर जिसका काम ही फ़ोन रिव्यू करके पैसा कमाना है, उस मुल्क में फ़ोन ही नहीं आ रहे.
फ़ोन कोई लॉन्च नहीं हो रहा, ना कोई गाड़ी लॉन्च हो रही है। मैं तो सोचता हूँ सुनील मंच भाई क्या करेंगे अभी 4-5 महीने बाद, गाड़ियाँ ही नहीं आ रही। एनीवे, अल्लाह भला करे सबका, लेकिन ये रियलिटी है। तो जिस मुल्क में देखें काम वाले लोग जो है ना, वो फिर काम ढूंढने कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि जो फारिग है वो फिर उसका कोई सीन नहीं है ना। ये जो आर्ग्यूमेंट है जी 30 साल से नीचे है 60% पॉपुलेशन, तो ये कोई काम की यूथ होती तो अच्छी बात थी ना कोई इतनी खास ट्रेंड यूथ है। मैं ये नहीं कह रहा, टैलेंटेड भी हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना फारिग हैं। क्यों? उसकी वजह ये है, HSC के चेयरमैन की अपनी स्टेटमेंट थी और वो मेरे दिल को लगती है स्टेटमेंट, वो मैं हर जगह वो कोट करता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ना अच्छे स्टूडेंट्स पैदा करता है ना अच्छे सिटीजन्स पैदा करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं खुद जहाँ से आता हूँ सुबह, मतलब यहाँ छुट्टी के टाइम, स्कूल की छुट्टी के टाइम दोपहर ही हो जाती है, अच्छी स्कूलों के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक तो वो गाड़ियाँ किस तरह पार्क हुई होती हैं, और दूसरा वो बच्चे जिस किस्म का कचरा फेंकते हैं उस गाड़ी से, चलती गाड़ी से। क्या फ़ायदा 30,000 रुपये फ़ीस देने का अगर बच्चा ये भी ना सीख सका। और ये मैं बड़े स्कूल की बात कर रहा हूँ, कराची के पॉश एरिया के महंगे स्कूल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप तकरीबन कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कोई तालीम होती होगी। तो आप सोच लें फिर रूरल एरिया में क्या ही हाल होगा, या गवर्नमेंट स्कूल में क्या हाल होगा। तो हम यार अब ये कह रहे जी 30 साल से कम है 60% आबादी, ठीक है, 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूल ही नहीं जाता, आउट ऑफ स्कूल है 2.5 करोड़। इमेजिन 2.5 करोड़ अंगूठा छाप लोग इस दौर में क्या ही कर लेंगे। लोग सोचते ना जी कोई मैकेनिक बन जाएगा, अबे आने वाले वक्तों में गाड़ी पंक्चर ही नहीं होगी। जापान में तो पंक्चर भी नहीं होती, जापानी गाड़ियों में स्टेपनी नहीं आती। ऐसा ही है भाई, मीरा का टायर ही नहीं आता डिग्गी में, क्योंकि स्टेपनी का कॉन्सेप्ट ख़त्म। कल मैं देख रहा था भाई वो AI वाला, मोहित साहब, AI जनरेटेड फिल्म बन रही है पूरी। उसमें आप टाइप कर रहे हो कि शो मी मार्केट प्लेस, वो मार्केट आ गई, अच्छा ये डिलीट करो, ये डालो। आने वाले वक्तों में कैमरा मैन और कैमरा सब खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप इस पे काउंट कर रहे हो कि चलो 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, कोई स्किल सीख के काम कर लेगा, वो स्किल की ज़रूरत ही नहीं है दुनिया को। अभी तो आप देखिएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन जो फैक्ट है, दुबई जो है ना इस वक्त सबसे तेज़ जा रहा है AI टेक्नोलॉजी में, और वो अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। माई फ्रेंड वॉज हेयर येस्टरडे, वो जो पॉलिसीज़ वगैरह में बड़ा इन रहते हैं, नाम नहीं लूँगा, छोड़ें। तो वो बता रहे हैं कि भाई उसकी लीगैलिटी के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है कि सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी जो है उसकी लीगल बाउंड्रीज़ क्या होंगी, अगर उससे किसी को लग जाता है तो हु डू यू सू, द ड्राइवर और द मैन्युफैक्चरर वगैरह वगैरह। तो यानी वो सेल्फ ड्राइविंग कार की तरफ जा रहे हैं, और नोइंग दुबई, वो हर चीज़ दुनिया में सबसे पहले करना चाहते हैं। उनका KPI है दुनिया में रहने का, उनका USP ही यही है कि जो है मैंने सबसे पहले करना है जो भी करना है दुनिया में। तो वो इस वक्त सबसे तेज़ी से जा रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग पे। तो जितना हमारा KP वाला भाई, क्योंकि मैं रहता भी था टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, सारे KP के ही थे, वो कहाँ जाएंगे। अव्वल तो वैसे ही करीम उबर ने उनकी टैक्सी को बहुत कम वो कर दिया, डैमेज किया है। और मैंने सुना अब तो टैक्सी शुरू भी 15-20 दिरहम से होती है। बैक इन द डे इट यूज्ड टू बी लाइक 12 दिरहम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 8 दिरहम या 6 दिरहम, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात होगी ना, टैक्सी में बैठा ही नहीं 2012 से। तो वो कहाँ जाएंगे ड्राइवर, वो सारे वापस आ जाएंगे। जब तक यहाँ अब, और यहाँ पाकिस्तान में कितने ड्राइवर्स की ज़रूरत है ये भी तो देखें आप। तो ये चीज़ें प्लानिंग से चलती हैं मुल्क। यार हमने इतने रेवड़ जमा कर लिया, इसको ठिकाने कहाँ लगाना है, इसका काम कहाँ लेना है। फिर होता ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही नहीं होती, जहाँ पे अमीर इतना अमीर है, कल ही एक किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में देख रहा था यार, क्या लेविश सीन था। और दूसरी तरफ आप यहाँ डिफेंस की फुटपाथें देखें आजकल रात में, जो हम कहते थे ना वो जी इंडिया में तो लोग फुटपाथ पे सोते हैं, वही सीन अब यहाँ होने लग गए हैं। पहले होता था इक्का दुक्का कोई नशे करने वाला है वहाँ सो रहा है कोई ये, अब बाकायदा फैमिलीज़। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंस। अब्दुल्ला शाह गाजी से आप सीधा जाएँ यार, वो कौन सी बेकरी आती है, आइडियल बेकरी PSO के पंप के बाद, वो फुटपाथ रात को भरी होती है, वॉल टू वॉल, पूरी फैमिली सो रही है वहाँ पे। अब ये डिस्प्लेस लोग हैं फ्लड्स की वजह से, अब जाहिर है वो कितना ही लोग डोनेशन कर लेंगे या क्या कर लेंगे, इवेंचुअली आपको काम पे लगाना पड़ेगा, डोनेशंस पे मुल्क नहीं चलते। और फिर इतनी बड़ी आबादी, तो ये कहना जी 60% 30 साल से कम है, तो उसमें से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, ठीक है। अब वो क्या करेगा बड़ा होकर, अब आप सोच लें कितने मैकेनिक चाहिए हमें, कितने हमें जो है ना आपको मेसन्स चाहिए, कितने मज़दूर चाहिए।
आने वाले वक्तों में ये ज़रूरत ही नहीं है दुनिया की। 3D घर बनते हैं यार, अब तो 3D शुरू हो गया है। ये सीमेंट, बोरी, बिस्तर ये सब ख़त्म हो जाएगा यार आने वाले वक्तों में। तो ये चीज़ें जो अच्छे मुल्क होते हैं ना वो प्लान करते हैं, 30 साल का उनका प्लान होता है, भाई हम कहाँ खड़े हैं। जैसे मैं ये कोई इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए नहीं कह रहा यार, हमेशा फैक्ट पे बात करनी चाहिए। मोदी में लाख बुराइयाँ अपनी जगह, मेरे इतने एंटी मोदी दोस्त हैं, ठीक है, वो कहते हैं यार ठीक है टेक में उसने जो है ना बूस्ट दिया है 2014 से लेके अब तक। कल माई फ्रेंड वॉज हेयर, दिल्ली से आया था, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं उसके बाद, डोंट वरी, बाहर का पासपोर्ट है। उसने मुझे भाई लिटरली ये ठेले पे चाय बेचते ना, कह रहे मैंने एप्पल वॉच से उसको पे किया और उसकी पूरी रसीद थी, और रसीद में कौन कौन सा टैक्स नहीं मेंशन था, पूरा ब्रेक डाउन था कि इतना यहाँ टैक्स गया, इतना ये, इतना गया, फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। आई विश वो मुझे देता, वो ही डिडंट मैंने उससे पूछा नहीं, वरना वीडियो में चिपका के दिखाता ज़रा। तो यार मतलब एक ठेले पे चाय वाला जो है ना इतना इक्विप हो गया है बराबर में, हमारे बराबर में। उनकी छोड़ो वो कहाँ हग रहे हैं, कहाँ मूत रहे हैं, ये आपका मसला नहीं है, वो कर क्या रहे हैं और दुनिया के लिए ज़रूरत है। कल एक बहुत अच्छा मैंने एक कमेंट पढ़ा था, बल्कि एक काम करते हैं मैं आपको पढ़ के सुना ही देता हूँ, वो मेरे दिल को बहुत लगा था। तो किसी ने यही लिखा था कि जो है इतनी महंगाई हो रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे 150 रुपये 200 रुपये का दर्जन अंडे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो एक साहब है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका कमेंट किसी ने मुझे शेयर किया था, नो ह्यूमन डेवलपमेंट सिंस द लास्ट 40 years एंड यू स्टिल थिंक यू कैन प्रोग्रेस इन द 21st century. This country is a liability to the entire world. We don't produce anything nor we are of any benefit to the world. Instead, we make millions of hungry babies with zero skills and shit out of middle ages in mind. And shit of middle ages in mind. ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आया. So this problem is beyond the hands of any political party or government. Whoever comes to power would regret it later. और ये बात बिल्कुल सही है। आबादी का ज़्यादा होना मुसीबत नहीं है, अगर उस आबादी को आप प्रॉपर्ली चैनलाइज करें और कोई उनको रोज़गार दें, उनसे इकोनॉमी खड़ी करें। चाइना ने प्रूव कर दिया है, इंडिया इवेंचुअली 10, 20, 25 साल में प्रूव कर देगा। हाँ, मैं मोदी जी की जो बात कर रहा था, अभी जो इन्होंने 15 अगस्त को स्पीच दी थी, एक काम कीजिएगा, एक बहुत अच्छा चैनल है इन विच वो एक खातून होती हैं और वो ब्रेक डाउन देती हैं स्पीचेस का। 14 अगस्त की आप उनकी वीडियो देखें जो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा है, और फिर 15 अगस्त में मोदी ने जो 5 पॉइंट एजेंडा जो दिया था, जिसमें वन ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि वो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ 2047 में यानी अगले 25 साल का वो दिया है कि इंडिया विल बीट द पॉवर्टी वगैरह वगैरह। वो सुने, कम से कम चलो इंडिया करे ना करे वो अलग बात है, अबे कोई बात तो कर रहा है ना, कोई विजन तो दे रहा है। लीडर का काम और होता क्या है, हाथ से थोड़ी मुल्क बनाता, वो एक विजन देता है कि यार ये विजन है, ये मैं करने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीम को बताता हूँ, या जैसे जो मेरे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैंने ये विज़न 1.5 साल पहले दे दिया था कि यार ये इस तरह मैंने, आपको क्या लगता है भाभी से मैंने अभी चैनल यूँ बोला और अगले दिन चैनल हो गया? पिछले ऑफिस से मीटिंग्स होती हुई आ रही हैं, पिछले ऑफिस से वो आती थी, उनको मैं दिखाता था हम ये चीज़ें कर सकते हैं, पूरा बोर्ड पे समझाया ये करना है वो करना है, और फिर टीम को भी मैंने इस तरह बताया कि यार ये हमें करना है, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह एक्सपैंड करना है। एक विज़न दिया, उस पर काम किया, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपके सामने। तो कोई विज़न तो दे। अब आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान का विज़न क्या है या मिशन क्या है, अगले 25 साल में हमने क्या करना है? कोई डायरेक्शन है? नहीं है। वो आपकी बात सही है, पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं आपस में, पॉलिटिशियन डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। आपके सामने एक तरह आधा मुल्क डूबा हुआ था, अगले दूसरे भाई जलसे चल रहे थे दूसरों के, उनको भाई किसी को कोई फिक्र नहीं है, सबको अपनी कुर्सी से मतलब है। और उस पर पॉलिटिशियंस का कसूर नहीं है, आपने उनको वाली वारिस समझ लिया कि यार यही जो है ना मेरा मसीहा है, यही मेरे मसले सॉल्व करेगा, तो आप वो आपको अब्यूज़ करेगा। अगर आप इतनी पावर अगले के हाथ में दे दोगे, आप अकाउंटेबल ही नहीं करोगे उनको, आप उनसे पूछोगे ही नहीं कि भाई रिजल्ट क्या है। आप अभी इलेक्शन होने जाएंगे जब अगले साल होपफुली अगर हो, तो ज़रा कोई गिरेबान भी तो पकड़े ना। मैं उस तरह कह रहा हूँ, फिगरेटिवली कह रहा हूँ, कुछ फ़ौरन नहीं पकड़ लेना, बोला कि जी इन्होंने बोला था गिरेबान पकड़ो। आप उनको क्वेश्चन तो करो कि भाई मुझे PDF बना के दिखा, मुझे कोई PPT बना के दिखा कि क्या किया था और अब क्या करने जा रहा है। वही भड़के हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत को ये कर देंगे, दुनिया को ये कर देंगे। अबे रोड मैप दिखाओ, शो मी। अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे आके कोई नौकरी लेने आए, वो बोले जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बातों से थोड़ी। अभी जैसे वो मेरी एनिमेटेड वीडियो आई, आपको पता है वो बच्चे को मैंने कैसे हायर किया, ही इज़ ओनली 17, उसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। उसने मुझे ये वीडियो खुद बना के भेजी, एडिडास वाली जो मैंने डाली थी,
और उसने बोला ये मैं कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी में। ये तो ज़बरदस्त है। हायर्ड, उसने मुझे विज़न दिखाया कि यार ये विज़न मैं आपको ये चीज़ दे सकता हूँ। अगर वो आके यहाँ बोलता, मिन्नतें करता, रोता, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बातों से थोड़ी होता, कुछ करके दिखाना होता है। तो हमने खुद ये पाले में इन डंगरों को हमने इतनी पावर दी हुई है, जिनको आप अपनी कंपनी में चपड़ासी ना रखे उनको आप पूरा मुल्क पकड़ा देते हो। मतलब आप खुद देखो ना यार, द ओनस इज़ ऑन यू एज वेल, क्योंकि हम अकाउंटेबल ही नहीं करते किसी को। हम पूछते ही नहीं किसी से, हाँ मेरे वोट से क्या होगा, पिछली एपिसोड में जो था मेरे वोट से क्या होगा, ये क्या होगा। अबे पकड़ो सालों को, करते ही नहीं हो। अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी किस्म की। और फिर आपके सामने, और जैसे कि मैंने आपको बताया, आधा यूट्यूबर भाग रहे हैं यहाँ से अगले 6 महीने में, मुझ समेत। मैं भी नहीं रहूँगा यहाँ पे। अबे कौन रहेगा यहाँ पे भाई? जहाँ इंसान वहीं जाता है जहाँ काम होता है। और इसमें कोई गिल्ट वाली बेटा बात नहीं है। पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई थी। ये पाकिस्तान वाले कॉन्सेप्ट ये इंसानों के बनाए हुए, ये जो बाउंड्रीज हैं, लकीरें हैं, ये इंसान के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। अल्लाह ने नहीं बनाया। अल्लाह ने पूरी दुनिया दी है। जब बोला है कि तालीम भी कहीं से लो, इल्म हासिल करने जितनी दूर जाओ। अब इसमें भी लोग कहते हैं ये सही रिवायत है, नहीं है। खैर, सिमिलरली जहाँ से आपको रिस्क मिल रहा है आप वहाँ जाके लो, ये आपका पूरा राइट है। सर्वाइव करना आपका पूरा राइट है। एक अच्छी ज़िंदगी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारना आपका भरपूर हक है। मैं तो कहता हूँ लोगों को जिस दिन पता चल गया ना आपके राइट्स क्या हैं, लोग सर पकड़ लेंगे कि मेरे इतने राइट्स हैं। आज एक बच्चे ने ईमेल की कि आपकी वीडियोस देख देख के मैंने अब्बा को कन्विंस किया और मैं किसी तरह कनाडा आ गया पढ़ने। और जब यहाँ मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि लोग एक दूसरे को किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं, कह रहे आप सही टोकते हो। पहले मुझे बुरा लगता था कि आप इस तरह ये बोलते हो, कह रहे आप सही कहते हो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं तो सबको ये कहता हूँ, मेरा तो इनफैक्ट एक सीक्रेट प्लान भी है, 10,000 बच्चा यहाँ से भगा दो। मतलब कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं भाई, वो जो काम का बंदा है, जो स्किल्ड आदमी है। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी भाई खुली ऑफ़र दी हुई है, सारी ज़िंदगी मेरे साथ नहीं लगा देनी भाई। गूगल अमेज़ॉन में काम करो, बड़ी पिक्सार में जाओ, क्या मेरे पास ही एडिटिंग करोगे? थिंक बिग मैन, ठीक है। तो मैंने तो सबको ओपन ऑफ़र दी हुई है कि whoever हैज़ क्रिएटेड ग्रेटर वैल्यू फॉर मी एंड इंक्लूडिंग यू एज वेल, कि भाई मैं जहाँ मुझे लगेगा कि भाई आप अच्छा कर सकते हो आगे, आई फैसिलिटेट। वो कज़न याद है गया ना एडनबरा, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, ना मैं कोई पॉइंट्स ले रहा हूँ ये, लेकिन मुझे था कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में कितना ही कुछ कर लेगा गिवन हिज स्किल सेट। तो मैंने बोला भाई तू ज़रा बाहर जा, अपना देख ले खुद ही, ठीक है। अंदर से प्यास होगी, खुद ही इंसान ढूंढ लेता है, निकाल लेता है, ठीक है ना। बस वो थर्स्ट और वो एंग्स्ट चाहिए होती है। तो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी भाई खुली ऑफ़र दी हुई है, कल को कहीं जाना हो मुझे बताना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैंने एडिटर को बोला भाई तू जर्मनी जा, तू कहाँ मेरी वीडियो एडिट कर रहा है, वहाँ से जाके पढ़। कह रहा नहीं अभी मैं ज़रा ज़ेबिस से पढ़ लूँ फिर पढ़ लूँगा। तो मैं तो भाई करता हूँ बिल्कुल जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि यार ज़िंदगी दुनिया में ना आपका मकसद है लोगों को फैसिलिटेट। ये क्या चल रहा है शो, मैं फ़नी वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के? ना कोई ब्रांड इंडोर्समेंट है ना कुछ है। पैसे मैंने आपको बताएं ख़ास नहीं आते, इससे ज़्यादा के तो एडिटर हैं मेरे, समझ रहे हैं मेरी बात। मगर किसी की अगर ज़िंदगी बेहतर होती तो और क्या है, इबादत से कम नहीं है भाई, ये भी एक इबादत की फॉर्म है। कुछ नहीं तो यही दुआएं जो हैं आपके काम आती हैं। दुआएं समेटना सीखें। तो आप ये बेटा गिल्ट ना लें कि क्या है और क्या नहीं है। देखें जिसने मुल्क बिगाड़ा है वही सही करे। जो मुल्क की बाग दौड़ हाथ में संभालते कि हम ठीक करेंगे तो कर ले भाई। मैं इसकी ये मिसाल देता हूँ, जब आपके घर में रंग रोगन होता है या बाथरूम बन रहा है, कमोड वमोड पूरा सिस्टम उकड़ गया, तो नानी के घर रहने जाते हैं ना, या मामू के घर रहने जाते हैं, चाचा के घर रहने जाते हैं, यार अभी घर में काम हो रहा है, बन जाएगा तो आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अभी मुल्क टूटा हुआ है, रिपेयर होनी है, तो हम चले जाते हैं बाहर, पैसे हम भेज दिया करेंगे कि भाई जो भी मजदूरी पे पैसे लग रहे हैं पैसे ले लें, रेमिटेंस बिल्कुल भेजेंगे। गोल होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं करनी है हमने बाहर बैठ के, रेमिटेंस भेजेंगे। वैसे भी इस मुल्क का गोल है कि लोगों को इतना सताओ कि मुल्क से भागें और रेमिटेंस भेजें, फिर उनकी अगली नस्ल वहाँ पैदा हो जाएगी, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होगा। तब तक जो नई नस्ल यहाँ पड़ गई है उसके लात मारो, चल भाई तू बाहर जा, डॉलर भेज वहाँ से। ये चल रहा है यहाँ पे, यही चल रहा है, वरना और क्या काम हो रहा है यहाँ पे? क्या प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे? कुछ भी नहीं बनता। कुछ बनता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं बनता। कोई स्किल सेट है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है कि हमें हर बार बचाने आए? क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत पूरी कर सकते हैं दुनिया की हम? कुछ भी नहीं, फटने फटाने के अलावा। एनीवे, तो भाई जाएँ भाई, गिल्ड विल्ड की कोई बात नहीं है। खिदमत करें आप, डॉलर जब भेजेंगी उससे ज़्यादा खिदमत होगी मुल्क की। यहाँ रह के आप क्या ही खिदमत कर लेंगी? 30,000 कमाएंगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के 30,000 कमाएंगी। कल वो जो बच्ची जिसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूँ,
बेचारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 30,000 कमाती है, पैसे जोड़ जोड़ के कह रही भी बाकू जा रही हूँ देखने। तो बिल्कुल ना सोचें भाई, आपके दोस्तों का कसूर नहीं है, जिन्होंने ख़राब किया वो सही कर लें, जब सही हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। हम कौन सा छोड़ के जा रहे हैं, हमारा मुल्क है भाई, यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा जो है आबाओ अजदाद यहाँ पे रहे हैं, कुछ बाहर से आए थे, चलो उसके बाद तो सारे यही हैं, ठीक है, फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, बहनें हैं, भाई है, बच्चे हैं उनके, तो मेरा तो कभी भी ला ताल्लुक़ तो कभी भी नहीं हो पाएंगे हम, बिल्कुल आएंगे हम, सही कर लें फिर आ जाएंगे हम वापस। जब तक डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है हम बाहर चले जाते हैं, खल्ली वल्ली यार। तो भाई अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना सबका हक है, कि जस्ट बिकॉज किसी ने 1970 में गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से आप आज भुगत रहे हो, अगले मर खप के चले भी गए, हिसाब भी हो गया उनका, आप आज तक सह रहे हो उनकी पॉलिसीज़, क्यों भाई, क्यों सहें हम, किसी और का किया हम क्यों सहें, जिसने ख़राब किया वो ठीक करे, जब वो ठीक हो जाएगा आ जाएंगे, अल्ली वल्ली। चलें जी, टेक केयर, ज़्यादा टेंशन ना ले, ब्लड प्रेशर ना बढ़े, अभी 19 की हैं आप, वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएंगी। ओके बाय। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, होप दिस email finds you in peace and health. Not going to mention my name or anything, other details for some personal reasons. Hope you understand, which is fine. I actually encourage that. The reason for writing this email is to ask for your guidance and help regarding a situation that I'm dealing with for the past 10 years. I'm a homosexual for as long as I can remember. I'm attracted to men just like any guy is attracted to a girl. I'm not going to get into this discussion of halal or haram. I for sure know this is haram and about the consequences, or one can say the khawf-e-akhirat. Before anyone starts pointing fingers at me, I have kept myself away from zina. I'm just in need of... Ek second. You've kept yourself from zina with whom? I'm just in need of piece of genuine advice you can offer. At the age of 10 years old, I knew about this, but as time passed, this slowly started to become an issue that became a hindrance in my daily life. I wasn't able to concentrate on studies. I used to gaze at my male teachers, imagining myself in weird scenarios. Basically, every good-looking guy in public, I would just keep looking at them. Till then, I knew that being gay is something that I should be not, but I was. I know many people will say sexuality is a matter of choice, but it wasn't for me. I know it wasn't. I decided that I have to change cause the end to this is not good. I decided to meet a psychiatrist. I told him everything from A to C, and I was ready for anything that can make me like girls or start developing feelings towards one. He advised me for nikah. Wow, ye psychiatrist hai. For nikah, and said that once you start interacting with your wife, you'll start to have those feelings. That's a very stupid advice from a psychiatrist. वैसे मैंने यहाँ बहुत सुना है psychiatrist के पास लोग जाते हैं. In fact, a lady once messaged me saying this. एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट के पास गई इस्लामाबाद में, उन्होंने बोला नमाज़ पढ़ा करें. तो फॉर समथिंग उनको कुछ और प्रॉब्लम था, मगर आगे से आया कि आप नमाज़ पढ़ें. आई एम नॉट सेइंग उसके फ़ायदे नहीं हैं, प्लीज़ ऐसा ना सोचा करें. मैं कोई दीन से आरी आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, मगर खाली ये सोल्यूशन नहीं होता भाई. तो कैंसर में क्यों नहीं बोलते नमाज़ पढ़ें? वाई डू यू गो फॉर कीमोथेरेपी? गेट व्हाट आई एम सेइंग? जिस तरह दिल ऑर्गन है, बाईपास होता है, किडनी ऑर्गन है, डायलिसिस होता है, इस तरह दिमाग भी एक ऑर्गन है, इसकी भी एक ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है. नमाज अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, मगर साथ साथ दवा भी, कहते हैं ना दुआ और दवा. एनीवे, you'll start to have those feelings. It'll also take away your mind off from men. He also prescribed me some medicines for depression, anxiety, which also was something I dealt with for months due to this. I never considered marriage to be the solution, and I don't think it is. I can't just marry a girl assuming it's going to turn me into a heterosexual all of a sudden. And what if it doesn't? My marriage will obviously fail, but more so, the girl will have to face a failed marriage due to a reckless decision made by me. So I decided to let go of the idea of the marriage until I was 100% sure that I'm emotionally and physically capable of it. I have no idea what I should do. I have researched and gone through the internet several times. Some people do recommend conversion therapy, claiming it's effective, but along with psychological side effects. Also, it is banned in several countries. I have come across some doctors online who claim to perform it in Lahore. खुदा के वास्ते जो चीज़ अंडर द शैडोज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ख़ास तौर पे लाहौर में भाई बड़े इस तरह के स्कैम होते हैं.
फर्टिलिटी स्कैम एक बहुत बड़ा होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर पाकिस्तान में मैंने पहले भी बताया है। और वहाँ पे वो जो ख़वातीन आती हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे, तो उनको उनके जो जेनिटर्स हैं उनका सीमन लेके इंसेमिनेट कर देते हैं। लेते शौहर का है कि जी शौहर का डाल रहे हैं हम, वो IVF कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो होता असल में जेनिटर का है। जब उनको पता होता ना कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट लो है, से नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम करेंगे ट्रीटमेंट, और वो जेनिटर का लेते हैं और वो डाल देते हैं और वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं। तो भाई जहाँ चीज़ लीगल नहीं है ना, तो उसका मतलब है उसके ऊपर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, तो उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो आप उनको फिर पकड़ भी नहीं सकते। कानूनी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कहाँ पकड़ेंगे, उल्टा आपको ब्लेम करेंगे, आप क्यों गए जब आपको पता है यहाँ चीज़ें इलीगल थी। सो प्लीज़ ये तो मत कीजिएगा। What do you think I should do? It is very difficult when I'm in public or when I see a couple. I just want what they have, the physical touch between each other, the exchange of emotions. I crave for that every second. Also apologies for such a long email. नहीं ईमेल तो आपकी बिल्कुल सही है, शॉर्ट एंड स्वीट। ये आप ने बहुत अच्छा किया, जैसे कि भाई सुना तो मैं बताता हूँ। एक साहब हैं, वो गे हैं और उनको हमेशा से मर्द अट्रैक्ट किए हैं एज अपोज टू ख़वातीन। एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, साइकेट्रिस्ट के पास सॉरी, उन्होंने कहा जी शादी कर लें, वो हो जाएंगे आप चेंज। भाई ये नहीं होता। अच्छा, अगर इस तरह चेंज हो सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इट्स अ चॉइस, तो एक हेट्रोसेक्सुअल आदमी पे ये चॉइस क्यों नहीं आती? वो क्यों नहीं गे बन सकता? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? व्हाई एम आई नॉट अट्रैक्टेड टू गाइज? अगर इफ़ इट्स अ चॉइस, इफ़ आई वांट टू इवन थिंक अबाउट इट, नहीं हो पाता। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल द अदर वे अराउंड? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो ये इट्स नॉट अ चॉइस, सम पीपल आर बोर्न विद इट। तो खैर, अब ये आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की, रिस्पॉन्सिबल कि जी शादी ना करें। ये कोई मिरेकल नहीं है कि यार औरत होती है खुदा के वास्ते, वो कोई हरमियोन नहीं होती कि वो आके ऐसा मैजिकल स्पेल करेगी कि आपकी, अगर आप गरीब हो तो अमीर हो जाओगे, अगर आप परेशान हो तो सही हो जाओगे, अगर आप गे हो तो अनगे हो जाओगे। भाई औरत इंसान ही होती है, वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती। पता नहीं क्या इतना नहीं चढ़ा औरतों को सर पे कि जी मेरे सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस औरत में। कहाँ से उसकी अपनी 10 प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद ढूंढती फिर रही है मेरा कोई सोल्यूशन कोई निकाल दे। अबे खल्ली वल्ली, इतना नहीं सर पे चढ़ाओ। सो ये तो आपने रिस्पॉन्सिबल बात की कि शादी ना करें, किसी की ज़िंदगी ना ख़राब करें, और ऐसे बहुत केसेस में हुआ है, इवन आज भी होता है। प्रोहिबिशन की बात करें, जब अमेरिका में ये चीज़ अनलॉफुल थी, कल ही मेरे दोस्त बता रहे थे, वाशिंगटन DC में एक बार था और वहाँ पे ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स आते थे और संडे को सुबह वो चर्च जाते थे बीवी बच्चों के साथ, फिर एक ड्रिंक के लिए उनको इस बार में लाते थे, फिर कहते थे चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ, बाकी मैं यहाँ चिल करूँगा। तो बीवियों को जब वो घर छोड़ के आते थे तो उस बार के अंदर नीचे बाकायदा एक सीक्रेट गे क्लब था और वहाँ स्ट्रिप क्लब भी था। और ये चीज़ें, बिकॉज माई फ्रेंड्स वाइफ इज़ डॉक्यूमेंटिंग स्टोरीज़ ऑफ वाशिंगटन ऑफ द पास्ट, तो उसमें से एक ये स्टोरी निकली थी। तो ऐसे भी होते हैं क्लॉजेटेड, पूरी फैमिली होती है, सब सही होके चल रहा होता है। कितनी फिल्मों में आपने देखा है। इनफैक्ट मुझे ये इंडिया की एक वेब सीरीज़ याद आ रही है जिसमें हाँ ये वाली थी ना, शादी जो अरे वेडिंग प्लानर्स जो होते हैं, मेड इन हेवन। तो मेड इन हेवन में नहीं था वो उसका वो CCTV लगा देता है अपने किराएदार के घर में, याद है? तो उसके घर लगाया था, क्योंकि होता वो हेट्रोसेक्सुअल मैरिज में, लेकिन अंदर से वो कुछ और होता है। तो ये ना करें भाई, वो फिर उसकी वीडियो निकल आती है, उसको निकाल देते हैं, यू नो। तो ये चीज़ ना करें। ऑल्सो मुझे बार बार रहकर ये वो ईमेल याद आती, मेरी बहुत शुरू की वीडियोस में थी, जो पुराने व्यूअर्स उनको याद होगी। एक ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही एक साहब थे, उनके 3 बच्चे थे और वो गे थे, और उन्होंने फैमिली प्रेशर में आके कर ली थी। नाउ ही डजंट लव हिज वाइफ, दे डोंट मेक आउट, दे डोंट इवन स्लीप टुगेदर। अब वो परेशान है। तो मैंने बोला, अब उनको वो ही वांटेड टू लाइक यू नो कि मैं क्या करूं। जब आप सिंगल होते हो ना, आपके पास सिर्फ अपनी जिम्मेदारी होती है और वो डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप किसी से शादी में आते हो तो आपके ये गिल्ट होता है, यार मैंने इसकी ज़िंदगी ख़राब की। एंड राइटफुली सो, औरतों की ज़िंदगी बर्बाद है, ठीक है। डिवोर्स औरत की कोई इज़्ज़त नहीं इस माशरे में। ये हमारा बेहतरीन नंबर 1 माशरा है, कोई इज़्ज़त नहीं है। बल्कि उल्टा लोग कहते हैं खुली दुकान है, यू नो। ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं कि अब भाई ओ शी टेस्टेड द मीट, तो अब इट्स वेरी ईजी,
इन एंड आउट, अब कौन वर्जिनिटी चेक कर, लाइक आई एम अ गाय, मैं भी इसी माशरे की प्रोडक्ट हूँ, मुझे पता है मर्द किस तरह सोचते हैं। तो डिवोर्स औरत की जो है ना यहाँ पे इसी तरह कंसिडर की जाती है, शी इज़ एन ईजी स्कोर, ओ शी मस्ट बी डेस्परेट नाउ दैट शी हैज़ नो मैन इन हर लाइफ वगैरह वगैरह इस तरह करके। तो ये तो एक तो इस तरह की इज्जत दी जाती है, और वैसे भी सोशली भी एक वो ही होता है कि यार घर नहीं संभाल सकी, हम भी तो पिटे हैं पूरी ज़िंदगी, तू भी सह लेती थोड़ा, हमारे जो नहीं सह लो। वर्स्ट थिंग, वर्स्ट एडवाइस, वर्स्ट तरीन एडवाइस, यानी जुल्म सह लो, यानी ये सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है। इनको कौन समझाए, बल्कि वो जिन्होंने मज़हब के ज़रिए चीज़ें समझानी है वो खुद नहीं समझाते, बिकॉज वो खुद ये चीज़ें करते हैं। वो तो चाहते हैं औरत कंट्रोल में रहे ताकि वो कुछ भी करते फिरें। अबे खल्ली वल्ली यार। एनीवे, तो बिल्कुल ये तो आपका अच्छा डिसीजन है, शादी नहीं कीजिएगा। रही बात आपकी दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस लव एंड इमोशन, लाफ्टर, दिस एंड दैट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, इंसान इमोशंस का ही भूखा होता है। बाकी सारी चीज़ें वो अटेन कर लेता है, हाथ पैर मार के पैसा भी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इंसान वो एक फ़िज़िकल टच होता है, कोई मेरी बात सुने, ये ही इंसान की आखिर में यही नीड होती है कि समवन टू लुक फॉरवर्ड टू, समवन टू बिल्ड ड्रीम्स विद, यू नो। और ये बहुत बहुत फील होती है, स्पेशली इफ़ यू लिविंग अ लाइफ ऑफ क्वाइट डेस्परेशन, तो ये इट रियली हिट्स हार्ड। मतलब आप दुनिया के सामने you're लाइक डूइंग ग्रेट, you're वर्किंग हार्ड, you're बिल्डिंग एन एम्पायर एंड एवरीथिंग, बट इफ़ यू गो होम टू नो वन, दैट्स वेरी सैड। ये करण जौहर के एक इंटरव्यू में था एंड ही एक्चुअली क्राइड, और मैं बहुत कोट करता हूँ ये। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, आई थिंक वो साजिद हसन का इंटरव्यू, साजिद हसन नहीं, साजिद खान कि उसमें इंटरव्यू में था या किसका था, बट दैट्स व्हाट ही सेड कि आप हमारी ब्लिंग वाली लाइफ देखते हो, पार्टीज़ हैं, अवार्ड सेरेमनीज़ हैं, इधर उधर ये वो, वही लाइक आई गो होम टू नो वन एंड इट हर्ट्स। वो तो घर भी बड़े होते हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, और चुभता है, जितना बड़ा घर हो उतना वीराना लगता है, छोटा अपार्टमेंट हो उतना नहीं चुभता। एनीवे, तो आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। अब आपकी अपनी चॉइसेस हैं, दैट दोज आर योर चॉइसेस। अब वो मैं आई वोंट टॉक यू आउट ऑफ इट, मगर दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट कि शायद लड़की से कर लो, शायद कुछ हो जाए, शायद वायद कुछ नहीं होता भाई। औरत के पास कोई मैजिकल वॉन्ड नहीं है कि वो आपको ठक करके सही कर देगी, कुछ नहीं होता, सब ढकोसले हैं, ये रीजंस हैं जो लोगों ने अपने आप को दिए हुए कि वो ये आ जाएगा तो सब हो जाएगा। मुंडा की करता है, वेला एज अ व्याह करा दो, जैसे वो आके बहन की वो रेज्यूमे बनाएगी तुम्हारा, या वो हेड हंटर है तुम्हारी, फजूल की बातें, फजूल की लॉजिक्स हैं। सो दैट्स मैरिज इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। रही बात ये, अब उसमें मैं कुछ कहूँगा तो फिर लोग बोलेंगे आप LGTV प्रमोट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। आई मीन लाइक यू हैव अ लाइफ, इट्स नॉट लाइक दीज पीपल डोंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। आई मीन इफ़ यू लाइक समवन, आई होप यू फाइंड समवन और समथिंग, वो आपके अपने डिस्क्रेशन है, आपके अपने हैं। थेरेपी कंटिन्यू रखें और फाइंड अ बेटर थेरेपिस्ट जो कि इससे बेहतर आपको कोई मशवरा दे सके। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जितने भी LGBT कम्युनिटी के लोग जिनको मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानता हूँ, ख़ासतौर पे ट्रांस कम्युनिटी के लोग, ज़्यादातर वो पाकिस्तान से मूव आउट कर गए इसी वजह से। उसकी वजह ही यही थी कि यहाँ पे वो आप अपने आप को ना एक्सप्लोर कर सकते हो, ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एंड यू आर ऑलवेज लिविंग अंडर थ्रेट। आई न्यू समवन who would keep different ladies set of clothes गाड़ी की डिग्गी में, घर से लड़का बन के निकलता था, किसी और के घर गया, दूसरे कपड़े पहने, मेकअप किया और फिर पार्टी में गए, फिर वापस दोस्त के घर गए, उतारा, चेंज किया और फिर घर गया। तो वो ये वाली लाइफ जी रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब यहाँ नहीं रहना, ये मैं कब तक करूँगा, एक ना एक दिन पकड़ा जाऊँगा। और वालदेन जो है कट्टर जो है ना, मतलब मज़हबी फैमिली है, ज़ाहिर है, तो वो तो मार मूर देंगे। तो उन्होंने फिर ये कहा, साहिबा ने, साहिब कहने लगा था, अब तो वो साहिबा हैं, उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। तो ये करते हैं कुछ लोग, मतलब क्योंकि अंडरस्टैंडेबल बात है कि यहाँ पे सरवाइव करना इस कलंक के साथ बहुत मुश्किल है। तो आई होप यू फाइंड अ वे आउट। मैं तो बस यही कह सकता हूँ, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, वो बेहतर से बेहतर चीज़ें करे, दुआ ही दे सकते हैं हम। बाकी ये कि थेरेपी कंटिन्यू रखें किसी अच्छी जगह से,
ट्राई टू फाइंड अ वे आउट, और शादी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना, ख्याल रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 33-year-old सैयद ज़ादी स्टक इन फैमिली ट्रेडिशंस। डियर जुनेद, इफ यू समहाउ कम अक्रॉस दिस ईमेल, डोंट रीड आउट माई नेम और ईमेल। आई बिलोंग टू अ सैयद सुन्नी फैमिली. Sayyid Sunni family? I've never heard of this. I'm 33-year-old working as a doctor in a good hospital. As you must already know that Sayyids don't marry outside their caste. It is a strict rule every member of the family has to adhere to, especially girls, because खानदान की लड़की बाहर नहीं देनी. I want to get married and have a family of my own, but somehow this rule and keeping my parents' honor in the family is hindering me from doing it. I've never dated in my entire life due to strict family traditions and knowing that it would never end well, so why ruin another guy's life with false hope? लड़कियां भी इस तरह सोचती हैं, क्या बात है। जो रिश्ते अब्बू दिखाते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनकी शख्सियत होती है, उनको बग़ैर किसी पूछ-गछ के घर बुला लिया जाता है, एंड इट मेक्स मी फील सो ह्यूमिलिएटेड एंड आई एम एन एजुकेटेड प्राउड गर्ल एंड व्हाट द फक एम आई डूइंग इन माई लाइफ। मुझे फोर्स किया जाता है कि सैयदों में रिश्ते कम हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, डिमांड्स का ताना दिया जाता है। मेरी बहन भाइयों ने मुझसे बात करना छोड़ दी है जस्ट बिकॉज उनके कहने पे शादी नहीं करती। दे कॉल मी अ लूजर दैट आई विल बी नथिंग इन लाइफ एंड आई एम जस्ट अ बर्डन। एवरीवन अराउंड मी इज गेटिंग मैरिड और इज इन अ रिलेशनशिप except me, and now I feel alienated in my own social circle. People have started talking at my office and even my friends too that how pathetic my life is. Why the hell are they talking about your life? I don't like this. It makes me feel degraded. माँ बाप के ख़िलाफ़ जाने का सोचूं तो अल्लाह से खौफ आता है कि माँ बाप की नाफरमानी करें। माँ बाप आपको खुड्डे लाइन लगा दें, वो उनको खौफ नहीं आता, औलाद को ही खौफ आता है। देखा, ये होती है ब्रेन वॉशिंग, कि बच्चा गिल्ट में ही मर जाए कि यार नहीं, माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, फलानी हदीस की थी, और माँ बाप आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। भरा पड़ा है मेरा, कौन सी है एपिसोड है, 85 है, 84 ईमेल एपिसोड्स में भरा पड़ा है। माँ बाप जो हरकतें करते हैं, माँ बाप से कोई पूछगछ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? औलाद ही दो गम लेके बैठी। अरे मसला यही है ना पाकिस्तान में भाई, हम किसी और की वजह, हमारी लाइफ के डिसीजंस किसी और के पास है। तो क्या घंटा तरक्की होगी जब आप इंडिविजुअल लाइफ में आपकी कोई तरक्की नहीं होगी? मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा? कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। नाफरमानी करने वालों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। अरे ठीक है, अल्लाह माफ़ नहीं करता, लेकिन नाफरमानी जो नाजायज़ हो, जो जायज़ हो, वो भाई अल्लाह ने भी बोला है जुल्म नहीं सहना। अगर माँ बाप बोले कि जी फलाना गुनाह करो, हम कह रहे हैं, और वालिदैन की कहानी टाला जाता, तो आप करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। अगर वालिदैन बोले जी शिर्क करो, हम कह रहे हैं, कभी करेंगी आप? तो जायज़ और नाजायज़ भी कोई चीज़ होती है, हर चीज़ नहीं माननी होती। वो कहते हैं ना भाई, वो हमारे यहाँ जो है ना मसला यही है, लोग कहते हैं जी हम बड़े हैं तो हमारी बात सही है। अबे बेवकूफ़ लोग भी तो बड़े होते हैं। उसकी सज़ा दुनिया में ही देता है। आई कांट सीम टू गेट आउट ऑफ दिस डिलेमा। अरे सज़ा आप ऑलरेडी सह तो रही हैं, कुछ ना करके भी तो सह ही रही हैं सज़ा। आई एम सो डिप्रेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो हाउ टू ब्रेक फ्री, आई डोंट वांट टू हर्ट माय डैड, कैन यू टॉक सम सेंस इनटू मी, गाइड मी। 33-year-old सैयद ज़ादी, सुन्नी फैमिली। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कहने को, अब जैसे भाई हम कहते हैं इस्लाम में कोई रेसिज्म नहीं है, लेकिन सैयद नॉन सैयद से नहीं कर सकता, ठीक है ना, या किसी अरबी को अजमी पे फ़ौक़ियत नहीं है, ना किसी अजमी को अरबी पे फ़ौक़ियत नहीं है, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करता है। सैयद जो होते हैं हमारे ब्राह्मण होते हैं, मुसलमानों के ब्राह्मण, ये राहुल सुब्रमण्यम कहते हैं कि भाई वो तो बात ही नहीं करेगा लोअर कास्ट से, शादी वादी तो दूर की बात। पता नहीं भाई, एक तरफ कहते हैं इस्लाम का ढंडोरा सब अल्लाह की नज़र में बराबर है, लेकिन अब आई डोंट नो भाई, ज़्यादा बोलूँगा फतवे आएंगे, फिर मेरी शक्ल पे यहाँ पे कोई लग जाएगा थंबनेल करके, फिर कोई मुंह से अब क्या बोलूँ मैं, कोई लूज़र यूट्यूबर होगा वो उस कंट्रोवर्सी को कैश कर नहीं करेगा। मेरे नाम पे व्यूज़ आते हैं भाई, सीधी सीधी बात है, इसीलिए लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं, होपिंग कि मैं जवाब दूंगा, और मैं जवाब दूंगा तो वो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो मैं तो किसी को फ्री के सब्सक्राइबर नहीं देता, अपने सब्सक्राइबर खुद लाओ, करो ट्रोल जितना करना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमने खान साहब से ये चीज़ सीखी, हमने ये कर लो जितना बोलना है। किताब में लिख, खान साहब पे पूरी किताब है, उन्होंने बोला खल्ली वल्ली जो लिखना है लिखो, इससे भाई तो ये सीखा है हमने, तो बोलते जाओ। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, रिलीजन का मामला, और रिलीजन के मामले में यहाँ लोग ज़रा जैसे आपके सामने हैं। तो अब भाई वही वाली बात जो है ना, नाफरमानी और ये वो, आपने बस ब्रेन वॉशिंग की हुई है, और ख़ानदान की लड़की बाहर नहीं देनी, और ये नहीं करना, वो नहीं करना। आई मीन आपकी लाइफ है भाई, आपकी लाइफ का डिसीजन दूसरे क्यों ले रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हमने अपनी लाइफ दूसरे को दे दी,
तू कर। अब ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं तो आप ज़ाहिर है सर्जन को देख, भाई इंसान वो कहते हैं ना, वी ऑलवेज फक अप, वी नेवर फक डाउन, ठीक है ना, सिम्बॉलिकली कह रहा हूँ। तो वो इंसान हमेशा अपने से ऊपर देखता है भाई, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है आप अगर आप डॉक्टर हैं तो आप यू विल बी एमिंग फॉर अ सर्जन, यू विल बी एमिंग फॉर समवन यू नो इन द अपर एशेलॉन ऑफ सोसाइटी। अब वो लाके आपको मैट्रिक पास इंटर पास दे देंगे। आई नो समवन पर्सनली, वेरी वेल टू डू लेडी, अब तो खैर उनकी हो गई शादी, मगर एक इंटर पास लड़का, यार वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की, मैं आपको क्या बताऊं, मैं ये भी नहीं बोल सकता वो अब कहाँ जॉब करती है वरना वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक बहुत बड़ी कंपनी में, ग्लोबल कंपनी में काम करती है, और उसके लिए इंटर पास लड़का माँ लेकर आई। माएँ डेस्परेट होती हैं, माएँ जो हैं वो फुप्पी से और खाला से उनकी बातें वो वैसी जिस तरह की ज़िंदगी हमारे औरतें जीती हैं, तो वो कहती हैं और पेन नहीं चाहिए तो इसको तो खुड्डे लाइन लगाओ। वो वी डोंट गिव अ फक अबाउट आवर डॉटर्स, बेटियां भाड़ में जाएं। ये रीजन है हमारा। 51%, 51% पॉपुलेशन, वी डोंट गिव अ फक अबाउट मोर पीपल इन पाकिस्तान, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, मेजॉरिटी खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। अभी आपके हाथ में भाई, अब मैं आपको फिर कोई लूज़ मशवरा नहीं देना चाहता कि फिर आपके लिए बाद में और प्रॉब्लम्स हो। अब ये ट्रेडिशंस इंसान के मैन मेड हैं भाई, अल्लाह मियाँ ने कुरान में कहीं लिखा है भाई, अल्लाह जाने भाई, अगेन मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, वैसे भी फिर फतवेबाजी हो जाती है। देयर इज सो मच टू से ऑन दिस टॉपिक, आई स्वेयर टू गॉड, मैं अगर पाकिस्तान में नहीं होता तो मैं बहुत कुछ कहता इस बारे में। नथिंग अगेंस्ट रिलीजन और एनीथिंग भाई, वैसे ही कल्चरली ये हमारे कल्चरल मसला है, ये रिलीजन का मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बेहतरीन मज़हब है, मसला कल्चर का है। कल्चर बड़ा ऑफ है यहाँ इंडो पाक, सिक टॉक्सिक कल्चर है। अब आपकी ज़िंदगी ये 33 की आप हो गई हैं, टाइम इज़ रनिंग आउट, जिस तरह हमारे यहाँ कहा जाता है, यू आर नॉट एज डिज़ायरेबल इन द सेक्शुअल मार्केट एज 21 ईयर ओल्ड। और आपको पता है यहाँ पे तो भरमार लगी पड़ी है, और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जी अपने हिसाब की लड़की चाहिए ताकि अपने हिसाब से मोल्ड कर लें। अब आप पढ़ी लिखी हैं, 33 की हैं, डॉक्टर हैं, तो आप तो किसी के ओपिनियन में आराम से नहीं आएंगी। तो वो फिर जिस तरह के हमारे ईगो वाले मर्द हैं, उनको तो आप जैसी चाहिए भी नहीं। नॉट डिसअपॉइंटिंग यू, अच्छे लोग भी हैं, बहुत कम है, अच्छे लोग ज़्यादातर नहीं रहते हैं, वो चले गए इस मुल्क से बाहर, काम का बंदा यहाँ ठहरता ही नहीं है। खैर, नॉट डिसअपॉइंटिंग यू और एडिंग टू योर मिजरी, बट ये कि अब ये चॉइसेस हैं, और मैं सबको ये कहता हूँ इंसान के पास अपनी ज़िंदगी का राइट खुद होना चाहिए। हमारे यहाँ दूसरे डिसाइड करते हैं आपने पढ़ना क्या है, और फलाना डिसाइड करता है शादी किससे होनी है। Like other people are deciding who I'm going to have sex with. How stupid is this idea? How stupid is this? कि यार इन दोनों को आपस में सेक्स करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है। The fuck man, ये कितना stupid concept है यार। इन दोनों के बच्चे होने चाहिए, चाहे बनती हो नहीं बनती हो, ठीक है, बच्चा आएगा, सही हो जाएंगे। यार खुदा की कसम, मेरे हाथ में होना, मैं कोड़े मारूँ ऐसे लोगों को। एक नस्ल चाहिए, एक नस्ल को कोड़े मारो, अगली नस्ल सीधी हो जाएगी सीधी। तो यार इस तरह की चीज़ों ने हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब माशाल्लाह इन योर ओन राइट यू मस्ट बी अ टैलेंटेड पर्सन, बट आप ये कल्चरल उसमें फंसी हुई हैं। अब आप, और इंसान की ज़िंदगी इतनी कीमती है। आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा, जेनेटिक्स तो आपने पढ़ी होगी। व्हाट आर द ऑड्स ऑफ यू बीइंग अलाइव इन दिस वर्ल्ड, एंड नॉट जस्ट बीइंग अलाइव, बीइंग नर्चर्ड टू बी अ डॉक्टर। कितने लोगों को मौका मिलता है? पाकिस्तान में कितनी लड़कियाँ डॉक्टर हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? तो इट्स अ मिरेकल ऑन इट्स ओन कि आप पैदा हुए और फिर आप अच्छे घर में पैदा हुए, इन द सेंस कि आपको पढ़ाई लिखाई कर दी और ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर अब आप फिर भी मिजरेबल हैं। कोई इंटर पास, बीए पास आपको पकड़ा दिया जाएगा, आपका उससे कोई मैच ही कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर आप ज़बरदस्ती बैठी होंगी। वो फिल्म, वो नहीं, मैंने लास्ट ईमेल में एपिसोड में भी कहा था, वो ज़बरदस्ती लड्डू खिला रहे होते हैं, वो नहीं, इंडियन शादियों की अक्सर फुटेज आई हुई होती है, वो हाँ, तो वो वही सीन होगा। ज़बरदस्ती का लड्डू है ये, आपके पेरेंट्स आपके मुंह में डाल रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी भैया, यू वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और आर यू गोइंग टू सबमिट योर सेल्फ एज यू हैव फॉर 33 ईयर्स। जुल्म सहना जो है, जुल्म ऑपरेसर को ताकत देने की उसमें आता है। अब देखें, मैं फिर कुछ मशवरा दूंगा, लोग बोलेंगे जी लड़कियों को कह रहा है घर से भाग जाओ या नाफरमानी करो। बात नाफरमानी की नहीं है, ना मैं किसी को भगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इंसान को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू वोंट स्टैंड फॉर योर सेल्फ, व्हाट विल यू स्टैंड फॉर इन लाइफ? आई अंडरस्टैंड, ईजियर सेड देन डन, कहना बड़ा आसान होता है, बहुत
टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, अब्यूज़ होता है, गिल्ट होता है। अब आप फजूल की गिल्ट में कि नाफरमानी करूँगी तो, और वो जो जुल्म कर रहे हैं क्या उनसे सवाल नहीं होगा कि आपको इस्लाम की बात करें ना, इस्लामिकली तो आपकी शादी तो 15 साल पहले हो जानी चाहिए थी। क्या करवाई उन्होंने? क्या उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया वहाँ पे? आप जो हैं ज़ाहिर है 33 की हैं, आप इंसान हैं, आपकी ख्वाहिशात होंगी, नीड्स होंगी, आप सप्रेस करिए बैठी हैं, वो गुनाह नहीं है। अजीब चीज़ है, सारे गुनाह औलाद पे ही आने हैं। ये सही है यार वालदेन, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है यार, शादी करके बच्चे कर लो, अब सारे गुनाह उन पे आएंगे, हम पे तो कुछ नहीं आएगा। अगर तो ये डील है, सोचे ना ज़रा इस बारे में। तो बड़ी अच्छी डील अल्लाह मियाँ ने दी, बस पेपर साइन करना है और थोड़ा बर्दाश्त करना है औरत को, वो बच्चे पैदा कर लो, फिर हम आ रही हैं हम हर चीज़ से, फिर तो सारा सवाल जवाब तो औलाद से होगा। पास किए जा रहे, इनहेरिटेंस है क्या गुनाह कि पास किए जाओ? अरे सब ने अपने गुनाह के जवाब देने। तो भाई ये मेरी नज़र में तो इट डजंट मेक सेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो कहते हैं ना, ट्रेडिशंस आर डेड पीपल्स बैगेज दैट यू कीप कैरिंग। ट्रेडिशंस एंड कल्चर आर डेड पीपल्स कैरेज। तो it's up to you. You're weighing yourself down. You must be a talented person. आप अच्छी डॉक्टर होंगी, काम करती होंगी. You're being weighed down by these cultural norms that don't make sense to me. रही बात आपके ऑफिस वाले आप पे बातें कर रहे हैं तो करने दें। बहन भाई आपको लूज़र कह रहे हैं, भाई ऐसा लूज़र होना बेहतर है रादर देन बीइंग इन अ मैरिज वेयर यू डोंट इवन लाइक द पर्सन, लेट अलोन लव। लव तो बहुत बात की चीज़ है, पहले आपको लाइक करना होता है। You get what I'm saying? You have to like a person first. लव अलग होता है। तो वो सही है भाई। अकेले बंदा, वो कहते हैं ना, अकेले रोले रात दिन किसी के साथ बैठ के रोना पड़े, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। और ये ऑफिस वाले जो आपके बातें कर रहे हैं, ये किस किस्म का ऑफिस है यार जो लोगों को डिस्कस, मुझे तो यार वो लोग ही समझ नहीं आते जो लोगों को डिस्कस करते हैं। आई स्वेयर टू गॉड, लोगों के पास कितना टाइम है यार। लाइक आई स्वेयर 24 से ज़्यादा घंटे होते हैं। ये हम दिन की कौन सी वीडियो बना रहे हैं? दूसरी, अभी इसके बाद तीसरी बनेगी वो गेमिंग चैनल की। आई स्वेयर दिन में 36 घंटे होते हैं। मैं और काम कर सकता, मैं और चीज़ें, क्योंकि यार आई हैव ड्रीम्स, आई हैव गोल्स, मुझे वो अचीव करना है और उनके लिए आई हैव टू प्रोवाइड मैन आवर्स, राइट। पर ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ना ड्रीम है, ना कोई अचीवमेंट है, ना कुछ है। भाई इत्तफाक से पैदा हो गए, इत्तफाक से मुसलमान थे, इत्तफाक से ये हो गया, पढ़ा लिया, कोई एग्जिस्टेंस जो है ना, इनकी कोई मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वह बैठे नौकरी कर रहे हैं, शाम को घर जाएंगे, ARY देखेंगे, दाल रोटी खाएंगे, सो जाएंगे। कोई एस्पिरेशन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है ज़िंदगी, मैंने ये करना। जिनके गोल्स होते हैं ना, उनके पास लोगों को डिस्कस करने का टाइम ही नहीं होता। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, हेट हमेशा नीचे से आता है या पीछे से आता है, ठीक है। इसलिए इन माई लाइन ऑफ वर्क आई गेट अ लॉट ऑफ हेट डे इन डे आउट फॉर नो रीज़न, गंदी गंदी गालियाँ। बट मुझे पता है वो दे डोंट हेट मी, दे हेट हु दे आर एंड वेयर दे आर इन लाइफ। दे वांट एग्जैक्टली व्हाट आई हैव, बट उनके पास नहीं है तो वो हेट कर रहे हैं, क्योंकि छीन नहीं सकते ना, ग्रेटनेस तो नहीं छीन सकते, ठीक है। तो बस कहते हैं गाली दे के आगे निकलते हैं, क्या छीनोगे मुझसे। तो इसी तरह अगर आपको लोग कोस रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अदरवाइज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड यू आर वेरी केपेबल एंड यू आर केपेबल इनफ टू अचीव अ लॉट। तो वो आपको इस तरह के नेज़े मार के आपको वीक कर रहे हैं, राइट। आप एक बैटल ग्राउंड में हैं और आपको नेज़े मार के आपको वीक कर रहे हैं, क्योंकि आप बैटल में आगे जाना चाह रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू फाइट योर डीमंस एंड दे आर वीकनिंग यू, ताकि आप ज़मीन पे रहें। कुछ लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि अगला बस हमसे नीचे रहे, वो आपकी केयर बड़ी करेंगे, बस कहेंगे लेकिन नीचे रहे हमसे, आगे ना जाए मुझसे। ऐसे भी होते हैं, दोस्त होते हैं ऐसे बहुत सारे। इनको तो खल्ली वल्ली करें भाई, पब्लिक को जो बोलता है बोलने दें, क्योंकि वो हमेशा नीचे से आता है हेट या पीछे से आता है। आपके हॉस्पिटल में जो टॉप सर्जन होगा, क्या वो आपको हेट देता होगा? नहीं। ही हैज़ लाइक 20 सर्जरीज टू डू। उसके बाद काम होगा, उसके बाद पैशन होगा, उसके पास उसके गोल्स होंगे, बच्चे बाहर पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, बड़ा घर लेना है, उसके बाद 10 चीज़ें होंगी। वो टाइम ही नहीं होगा टू डिस्कस के जी ये सैयदज़ादी जो हैं इनके क्या मामला चल रहा है। अब यार टाइम ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो फारिग बैठे होंगे, जो कुछ करते नहीं होंगे, तो इनको आप छोड़ें। बाकी ये कि भाई ज़िंदगी सबकी अपने हाथ में होनी चाहिए, इंसान को अपनी टर्म्स पे जीना चाहिए। व्हाट मेक्स मी हैप्पी शुड बी माई प्रायोरिटी। रही बात पेरेंट्स की, ये वो है, देखें जो लोग अपने आप को
800 साल पीछे रखना चाहते हैं वो उनकी चॉइस है, दैट्स नॉट योर चॉइस, ठीक है। अल्लाह ने सबको दिमाग दिया, अकल दी, अब कोई इसको नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा तो वो अब उसका मसला है, आपका मसला नहीं होना चाहिए। टू ईच देयर ओन भाई, किसी और की इनसिक्योरिटीज़ या किसी और की शॉर्ट कमिंग्स शुड नॉट अफेक्ट यू। अगले यही चाहेंगे, वो आप पे थोपें, अपना मसला आप पे थोपें, मगर आपने उसको डिफ्लेक्ट करना है, आने नहीं देना। कोशिश करें, फाइट करें और स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, हु विल? कोई भी नहीं करेगा। और मैं, इट्स वेरी हार्ड टू से, लेकिन जितनी ईमेल्स आती हैं, ये सब पेरेंट्स बर्बाद कर रहे हैं अपनी औलादों की ज़िंदगी, और ये नस्ल दर नस्ल होता आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पेरेंट्स अपनी औलादों के दुश्मन होते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स होते हैं। ये ईमेल सब उसका शाखसाना है। पिछली ईमेल क्या थी? वो कह रहा है मैं एनल सेक्स करूँगा तेरे साथ ज़बरदस्ती, और गालियाँ दे रहा है शराब के नशे में, और ये कर रहा है वो कर रहा है। बाप ने बोला अब तुम्हारी किस्मत, ये वो देखो ना, ये वालदेन है हमारे, ज़बरदस्त किस्म के वालदेन। अल्ली वल्ली भाई, अपनी टर्म्स पे जिए, ख्याल रखें। हाफिज़। ऑलराइट, तो ये थी आज की एपिसोड। आई वांटेड टू टेक वन मोर क्वेश्चन बट माय मीटिंग इज़ हेयर अर्लियर देन यूजुअल, बिकॉज उनको पता है मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, सो आई शुड जस्ट गेट देयर एंड रैप इट अप। तो आई होप यू गाइज लर्न अ लॉट फ्रॉम टुडेज वीडियो। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि यू एन्जॉयड, किसी की प्रॉब्लम में क्या एन्जॉय होता है, मकसद एन्जॉय कराना नहीं, लर्न कराना है। सो अपना सवालात भेजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर भेजिएगा, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag. It helps us to it helps us facilitate all of this that is required to produce this show. इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।